کہ ہم تیری بانی کو، ہم تیرے کلام کو کیا کریں؟ دیکھ سکیں۔ ہمیں بیٹی نے کورس گایا تیرے کلام دیا گلا سچی جان دے دیا۔ ہمیں یہ جان تب ڈالتی ہے جب ہمارا ایمان ہوگا، جب ہم اس کلام کو سنیں گے، اس کلام پر عمل کریں گے، اس کلام پر توجہ کریں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بھلائی دیکھیں گے۔ ہمیں میرے پاس جو آج کا پیغام ہے وہ ہے پطرس کے بارے میں۔ میرے عزیزو کہ خداوند پطرس سے کیا کام کروانا چاہتا تھا۔ امین۔ میرے عزیزو میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل اور اس کا 16 نمبر باب اور اس کی 13 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزو اس میں لکھا ہے، جو ہیڈنگ ہے یسوع کے بارے میں پطرس کا اقرار۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پطرس نے ایک بار یسوع کا اقرار بھی کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں۔ ہم بے شک پہلے نکالی ہو سکتے ہیں، یا بچپن میں تھے، لڑکپن میں تھے، جناراستی میں تھے، تو ہم نہیں جانتے تھے۔ اب جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہم خدا کا کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تمام شکر گزاریاں کس کے لیے ہے؟ زندہ خدا کے لیے۔ خدا ان شکر گزاری کی کیا کرتا ہے؟ خوشبو لیتا ہے، اور اس کے حضور میں شکر گزاریاں کیا ہوتی ہیں؟ مقبول ہوتی ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو سب نے نکال لیا متی رسول کی انجیل، اس کا 16 نمبر باب اور اس کی 13 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک ہم پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے بڑی شکر کے ساتھ۔ متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت سے شروع کریں گے۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونیا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پہ کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ عزیزو خداوند کی زندگی و کلام مقدس میں یوں مرکون ہے کہ خداوند کا بندہ بڑی ہی صاف لفظوں میں ہم تک یہ انجیل پہنچا رہا ہے۔ یہ انجیل مقدس جو ہے یہ مسیح یسوع کی کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری بتاتے ہیں، ہمیں خوشخبری سناتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کیسے شانہ بشانہ معجزے بھی کیے، خدمت بھی کی، منادی بھی کی، اور بہت سے دکھی لوگوں کو کیا کی؟ آزادی بھی دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند گناہوں کی معافی بھی دیتے تھے۔ آمین۔ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے، جب یسوع کیسریا فلپیا کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اس نے سوال کیا کہ لوگ ابن آدم کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کتنے لوگ یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ آمین۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ جس سے ملیں گے آپ راست باز ہیں، آپ جس سے ملیں گے وہ راست باز ہی ہوگا۔ آپ کہیں گے بہت لوگ جو ہے مسیح یسوع کے نام کو جان گے، اور بہت سے لوگ جو ابھی تک نہیں جانتے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم خداوند کا پیغام ان لوگوں تک بھی لے کر جائیں، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ مسیح ہیں، اور جب مسیح ہیں، ہم مسیح شدہ لوگ ہیں، تو ہم ان راستوں کے درمیان بھی جائیں گے، تو ہم انہیں بتائیں گے اگر تو اپنی راہوں کو چھوڑے اور پھرے اور خداوند کی طرف متوجہ ہوگا تو خداوند کا جلال تیری زندگی پر اور تیرے گھرانے پر ضرور ظاہر ہوگا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح بھی جیسے معجزے کرتے، برکتیں دیتے، شفائیں بانٹتے، روٹیاں کھلاتے، تو اس کا بھی دل کیا ہوگا کہ وہ پوچھے کہ لوگ میرے حق میں کیا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ پیچھے بڑبڑاتے بھی ہیں، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور خداوند جاننا چاہتے تھے کہ لوگ میرے حق میں کیا کہتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا،
कहते हैं बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई नबी। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? आमीन। सवाल ये है कि जो हम हैं हमारा ईमान कितना है। कोई बड़ा खादम खड़ा होकर कहे कि आपकी जमात में मौजूद रहते तो हम ये कहें कि हाँ आमीन। नहीं मेरे जीजो, हम मसीह हैं और रोज बरोज दुआ करने वाला आम मसीह भी जो है खुदावन जो है उसके घराने पर और उसकी जिंदगी पर अजीब और जलाली काम करता है। लेकिन खुदावन के हुजूर में ये दुरुस्त है कि बंदा नेक होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा खादम होना चाहिए तब उसकी जिंदगी में क्या होंगे मौजूद हो। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप खुदावन पर बिलीव करते हैं तो जब आप सुबह उठकर अपने घराने खानदान देने के लिए दुआ करते हैं तो यकीनन खुदावन का समान आप सबके लिए मिल जाता है। और यहाँ पर खुदावन बताता है कि वो लोग जो उसको जानने लगे, जो उसे देखने लगे, जो उसके मौजूद को देखने लगे, वो कहने लगे कि क्या है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बास कहने लगे एलिया ने बहुत बड़े बड़े क्या किए थे, काम किए थे और खुदावन यीशु मसीह से भी बड़े बड़े क्या कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और लोग हैरान हैं। वो समझ रहे हैं शायद एलिया, बास कहते हैं यर्मिया या नबियों में से कोई नबी। आमीन। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहते हैं शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का मसीह है। आमीन। बेटा है और मसीह है। जवाब जो है कि हम खुदावन की तरफ से दे सकते हैं, अपने आप से कोई जवाब नहीं दे सकता। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 नंबर बाब और मेरे ख्याल से 16 नंबर आयत में कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और यहाँ पर भी खुदावन का कलाम आज हमें यही बताता है कि पतरस अपने आप से नहीं कर रहा, पतरस जो है अपने आप से बात नहीं कर रहा बल्कि खुदा बाप ने अपना समान खोला और उसे हिकमत दी ताकि वो जान सके कि ये खुदा बाप का क्या है, बेटा है और मसीह है। आमीन। मेरे जीजो, उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बर यूहन्ना, क्योंकि ये बातें बोझ और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। होश और खून से हम कुश्ती करते हैं तो हम हार जाएंगे। हम रूह से सच्चाई से अगर इब्लीस का मुकाबला करें तो हमसे क्या होगा, हार जाएगा। और हमने कैसे करनी है इब्लीस के साथ कुश्ती? रूह और सच्चाई से। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम वाज़िह कर रहा है कि खुदा का बंदा जो पतरस रसूल है ये बड़ा शौर से भरा हुआ था। आमीन। जहाँ कहीं यीशु के साथ जाता बाकी शागिर्द चुप रहते और वो कहता खुदावन को क्या मैं करूँगा। आमीन। खुदावन से हर बात जब हम कहते हैं कि खुदावन को क्या मैं करूँगा तो खुदावन हमारी जिंदगी में क्या करते हैं, अपने जलाल को जाहिर करते हैं। आमीन। जाहिर कब करेंगे? जब हम क्या करेंगे, हाजिर रहेंगे। आमीन। जब हम कहेंगे कि खुदावन मैं क्या हूँ, हाजिर हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं गैर हाजिर तो खुदावन का सवाल भी मुझ पर खुला रहे तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आमीन। यहाँ पर लिखा है और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आर्मिलवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। आमीन। खुदा यीशु मसीह यहाँ पर पतरस से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भी तुझसे क्या करता हूँ, कहता हूँ। इधर आ जा बाजी। मेरे जीजो, पतरस रसूल जो है वो ये बात कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह से जब वो बात कर रहा है तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बहुत बड़ा क्या कर दिया, इख्तियार दे दिया। क्या कर दिया? इख्तियार दे दिया। अब इख्तियार क्या है यहाँ पर कि खुदावंद कहता है कि मैं तुझ पर अपनी क्या करूँगा, कलीसिया बनाऊंगा। तू क्या है, पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आर्मिलवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। आमीन। आमीन। मेरे जीजो, जब हम ये ईमान से मांगते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। ईमान से मांगने की क्या है, जरूरत है और खुदा ने उसे बहुत बड़ी क्या कर दी, बरकत दे दी। और इस बात के लिए हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं।
इख्तियार दे सकता है तो क्या मुझे और आपको नहीं दे सकता? वो खुदा जो कल मौत से करता था क्या वो आज मौत से नहीं कर सकता? जरूरत ये है कि हमें पतरस की जैसा बनने की जरूरत है। आमीन। जरूरत ये है कि हमें बाप की आवाज को सुनने की जरूरत है। जरूरत ये है कि हमें अपने कानों को खोलने की और खुदा की आवाज को पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने कानों को खोलेंगे और खुदा की आवाज को सुनेंगे और उसी के मुताबिक काम करेंगे तो खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी में क्या होगा? जाहिर होगा। आमीन। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का वादा कितना अजीम है कि खुदा कह रहे हैं कि मैं आसमान की कुंजियां, क्या आसमान की बादशाही और कुंजियां किसे दे रहा हूँ? इन्हें दे रहा हूँ इंसान। पतरस कौन सी? इंसान। कुंजी क्या है? क्या है? चाबी। चाबी के साथ क्या होगा? आसमान खुल जाएगा। आपकी दुआ से आसमान खुल सकता है, लेकिन आपकी दुआ रास्तबाजी के साथ होनी चाहिए। आमीन। मेरे चीजों, खुदा ने क्या कर दी है? पतरस को कुंजियां दे दी। आज खुदा हमसे कलाम कर रहा है। आज वो हमें भी चाबी देना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस दरवाजा को खोले जो पतरस के लिए खुल गया था। तो जब हम ईमान के साथ इस बरकत को रिसीव करते हैं, कलाम हम सब के लिए है, लेकिन सुनते हम नहीं है, समझते हम नहीं है। जब समझते नहीं है या सुनते नहीं है तो कलाम कैसे हुक्म में आएगा? नहीं आएगा। मेरे चीजों, जब हम सुनेंगे कि खुदा तू पतरस को दे सकता है, मुझे क्यों नहीं देगा? आमीन। तू पतरस के लिए आसमान खोल सकता है, उसे अपनी बादशाही दे सकता है, उसे वो कुंजियां दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं तो तेरी बेटी हूँ। मैं अपने घराने समेत तेरे साथ चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज तेरी क्या करूँ? और शुक्रगुजारी करूँ। मैं हर रोज तेरी क्या करूँ? इबादत करूँ। मैं हर रोज तेरे नाम को क्या करूँ? जलाल दूँ। तो खुदावंद हमारी जिंदगी में ऐसे ही काम करेगा। और यहाँ पर उसने पतरस को सिर्फ कुंजियां नहीं दी, उसने इख्तियार दिया। उसने कहा मैं तुझे क्या करूंगा? जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। आमीन। मेरे जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर से तुम्हारे लिए जाएगा। आमीन। मेरे चीजों, जो कुछ वो इख्तियार के साथ बदलूहों को, आमीन, तमाम उन बुराइयों को, तमाम उन गरीबी के मंसूबों को बांध देगा तो आसमान पर ही क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे। और जो बरकतों के दरवाजे वो लोगों के लिए खोलेगा वो जमीन पर भी उनके लिए खुल जाएंगे। और मेरे चीजों, पतरस रसूल ने ऐसी अच्छी मुनादी की कि जब रसूलों के अमाल में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि लोग पतरस के क्या रहते थे? मुंतज़िर रहते थे कि जब वो आएगा उसका साया भी मरीजों पर पड़ जाएगा, मौजूदों पर पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? तंदुरुस्त हो जाएंगे। आमीन। मेरे चीजों, जरूरत ये है कि हम खुदा के कलाम पर क्या करें? तवज्जो करें ताकि हम भलाई को देख सकें। आमीन। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। तब खुदावंद चाहते थे कि रसूल जो शागिर्द थे वो किसी को ना बताते कि ये खुदावंद का यीशु मसीह जो है ये खुदा के इकलौते बेटे हैं। आमीन। तब उन्हीं के लिए भी था। आमीन। मेरे चीजों, आज पूरी दुनिया के लिए, आज हम सब के लिए। आमीन। और खुदावंद चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बताएं कि मसीह जो मसलूब हुआ था वो जिंदा है और वो जीव और जलाली काम करता है और हमारी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं। आमीन। मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में से देखेंगे 105 नंबर ज़बूर। मेरे चीजों, बेटी निकट ने अपने घर के अंदर क्या की है? शुक्रगुजारी की इबादत रखी। आमीन। 105 नंबर ज़बूर में से पहले 3 आयतें देखिए। हमने निकाल लिया। मेरे चीजों, इसमें यूं मफहूम है, इसकी हेडिंग जो है खुदा और उसके लोग। खुदा और उसके लोग। आमीन। हम सब क्या है? खुदा के लोग हैं। खुदा अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। खुदा अपने लोगों की क्या करता है? फिक्र करता है। और हमें अपनी फिक्र खुदावंद को देने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से क्या करो? दुआ करो। पहला काम क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है। फटाफट मंगना शुरू नहीं कर देना, बल्कि पहले शुक्रगुजारी करनी। पहले जो बरकतें हमें मिल चुकी है, जो कुछ हमारे पास है, उसकी क्या करनी है? शुक्र गुजारी करनी है। और खुदावंद को क्या कहना है? मुबारक कहना है।
खुदावन को कदूस कहना है, खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, लबों से नहीं बल्कि दिल से और दिल की गहराई से हमें खुदावन की क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी। और फिर लिखा है खुदावन के नाम, उसके नाम से क्या करो, दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो। आमीन। कौमें कौन? हम तो अपने कौम के अंदर मनादी करने तो बड़ी बात है, बहुत ज्यादा कौमें, बहुत ज्यादा मजहब है। आमीन। उनमें खुदावन के कामों का हमने क्या करना है, बयान करना है। आमीन। बयान तब करेंगे जब हम पतरस की तरह रूह कुदरत से भरे हुए होंगे। आमीन। मेरे चीजों एक हवाले में पतरस कहता है कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास, हम तेरा दर छोड़कर बच जाए। आमीन। जब जिंदगी की बातें हमारे खुदावन के पास है, हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पर खुदावन का कलाम कहता है कि कौमों में उसके कामों का क्या करो, बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ। हम नहीं गाते तो हम गुनाह करते, हम बैठे तो पाक जमात में होते हैं, लेकिन अगर हम ज़बूर भी नहीं गा सकते तो ये हम क्या कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। अगर हमने अपनी ज़बान को ताला लगा कर रखा है या पुलिस के हवाले कर दिया है कि मैनू गीत नहीं आते, तो फिर असं निजात किस तरह पा सकते हैं। अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि उसके क्या करो, उसकी तारीफ में गाओ। गाना लाजम है, उसकी परस्तार ना भी हो तब भी वो खुदावंद के क्या है, चुने हुए परस्तार है। वो परस्तिश करेंगे तो उनके वजूद हल्के फुल्के हो जाएंगे। अगर वो परस्तिश नहीं करेंगे, अभी मैंने देखा कि बड़े शौर के साथ बाजी पुत्रा ने बाजी से मौका लिया कि बाजी मुझे मौका दे, मैं भी यहाँ पर क्या हूँ, मौजूद हूँ। जो परस्तिश करने वाले हैं वो हर वक्त इस तलब में रहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं खुदावंद के नाम को जला देने का मौका मिल जाए। हमें खुदावंद की परस्तिश करने का वक्त मिल जाए। वो अपने घर में भी बैठकर हमेशा दुआ करती रहती हैं, गीत गाती रहती हैं, और जो रासबाज है, जो खुदा के तालिब है, उनका रवैया, उनका तरीका यही होता है कि वो जागते, लेटते, सोते, सब्जी बनाते, काटते, कपड़े धोते हुए भी खवातीन क्या कर रही होती है, गीत और ज़बूर गुनगुना रही होती है। अपने लिए जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। बच्चों के तमाम काम करते हुए हम क्या कर सकते हैं, परस्तिश कर सकते हैं, और इससे हमें बरकत मिलती है। और जब हमें इससे बरकत मिलती है तो हमें रूहानी गजलें और गीत और ज़बूर की ज़बानी याद हो जाते हैं, और हमारे अंदर एक ज़खीरा जमा होना शुरू हो जाता है। आमीन। जब हम ऐसे चलते फिरते गाएंगे तो फिर हमें क्या होती है, ज़ुबानी चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। जब हम सिर्फ खोल कर पढ़ कर गाएंगे तो फिर हम खोल कर पढ़े हुए लिखे हुए को गा सकते, और ऐसे हम गीत ज़बूर नहीं गा सकते। आमीन। ज़रूरत है कि ये कलाम जो है, ज़बूर जो है हमारे अंदर जमा होने चाहिए, रूहानी गीत जो हमारे अंदर जमा होने चाहिए। जब हम गाएं तो बड़ी तरतीब के साथ उन्हें गाएं। यहाँ पर लिखा है उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदाह सराय करो। आमीन। खुदा का कलाम है, मेरा नहीं है, आपको बनाया हुआ नहीं है। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप परस्तिश करें, बल्कि खुदा की आवाज़ मेरे लिए फिर आप सब के लिए एक है कि उसकी क्या करो, तारीफ में गाओ, उसकी मदाह सराय करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। अजायब क्या है? हमारी जिंदगी में रोज कोई ना कोई मौजे होते, बरकत जारी होती है। बहुत से मसीहों के जिंदगियों में जीवन जलाली खुदा काम करता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा मौजे जो है वो दर्ज है। हमने इनका बयान, इनका चर्चा और कौमों में करना है, अपने मसीह लोगों में करना है। जहाँ हम बैठते हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है, जब किसी भी वजह से परेशान है, हमने उसे कलाम के वसीला से क्या करनी है, तसल्ली देनी है। और यहाँ पर लिखा उसके तमाम अजायब का क्या करो, चर्चा करो कि बाजी फलानी भैन की जिंदगी में अगर खुदा काम कर सकता है तो वो तेरी जिंदगी में भी काम कर सकता है। मेरे जब हम ऐसे कलाम की मुनाफी करना शुरू करेंगे तो खुदा हमें भी बरकत देगा और बहुत सी रूहों को जीतने का सवाब भी बनाएगा। आमीन। उसके मुकद्दस नाम पर क्या करो, फख्र करो। आमीन। हालेलुया। उसके मुकद्दस नाम पर फख्र। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, और जब उसके नाम में कुदरत है तो हमें उसके नाम पर फख्र करने की जरूरत है। जरूरत क्या है कि हम उसके नाम की पावर को जान जाए। बुजुर्गें यीशु नाम के आगे ठहर नहीं सकती। आमीन। बीमारियां यीशु नाम के आगे ठहर नहीं सकती, और किसी नाम से ये काम हो नहीं सकता। लेकिन जब हम यीशु नाम को बार बार लिए जाएंगे, उसके नाम से सारी चीजों को कैंसिल करते चले जाएंगे तो सब कुछ होता जाएगा। मेरे चीजों यहाँ पर लिखा उसके
नाम पर क्या करो, फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान होंगे। आमीन। जो खुदा के तालिब हैं उनके दिल वाकई क्या होते हैं, शादमान होते हैं। वो हमेशा पुरअमन, पुरसकून और बड़ा ही उनका नरम और फ्लैट लहजा होता है। आमीन। क्योंकि वो खुदा में क्या है, मुतमईन। वो जल्दी से जोश में नहीं आ जाते, जल्दी से फौरन से दूसरों के लिए गलत चीजें या गलत बातें कहना शुरू नहीं करते, बल्कि वो खुदावंद के कौम में रहकर सारी चीजों से क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और खुदावंद के नाम को क्या करते हैं, जला देते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर ज़बूर की हेडिंग है, खुदा और उसके लोग जो खुदा के हैं वो बड़े तहम्मुल के साथ हर वक्त खुदावंद की क्या करते रहते हैं, शुक्रगुजारी करते रहते हैं। आज बाजी निगत ने लाजम समझा कि मैं खुदावंद की क्या करूं, शुक्रगुजारी करूं, मैं एक पाक महफिल अपने घर के अंदर बनाऊं और उसमें खुदावंद की मदद सराय की जाए, उसमें खुदावंद के नाम को जला दिया जाए। ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि जिंदा खुदा के लिए है, और जब जिंदा खुदा के लिए है तो वो अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर आमीन। जब हमारा ईमान है तो खुदावंद इस गिराने खानदान को और हम सब को जो जगह से जगह पर जमा है कसरत से बरकत देने के लिए खुदावंद तैयार है। आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत।